Hello guys, I am Hitesh Tripathi and I am your instructor via Newton School, and in this video, that is day 17 of this playlist dynamic programming, we are going to learn that how we can print shortest common super sequence using DP. ओके सो प्रीवियस वीडियो में इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस होता क्या है एंड कैसे हम उसकी लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस की. ओके तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, जस्ट गो टू प्रीवियस वीडियो एंड वॉच दैट वीडियो बिकॉज दैट वीडियो इज अ प्री रिक्विजिट. ठीक है, वन मोर थिंग कि हम लोगों ने लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस ऑलरेडी देख रखा है वीडियो. ठीक है, तो LCS की वीडियोस काफ़ी सारी वीडियोस हमने ऑलरेडी देख रखी हैं, दैट इज़ रिकर्जन में, DP में कैसे हम उसका मेमोराइजेशन कर सकते हैं, कैसे टॉप डाउन DP लिख सकते हैं. फिर एक और वीडियो थी कैसे हम LCS प्रिंट कर सकते हैं. ओके तो ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ रहेंगी इस क्वेश्चन में और प्रिंटिंग LCS में. तो अगेन इफ़ यू हैवेंट वॉच दोज वीडियोज़ जस्ट गो एंड वॉच दोज वीडियोज़, क्योंकि ये सारा का सारा वीडियो ऑलमोस्ट वैसा ही है प्रिंटिंग LCS के जैसा. ठीक है, एंड कोड भी इसका सिमिलर है, लाइक वी आर गोइंग टू यूज सेम कोड विच वी हैव कोडेड इन दैट वीडियो प्रिंटिंग LCS. ठीक है, जस्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो एंड ये वीडियो बहुत ही ईजी होने वाला है. ठीक है, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो लेट्स जस्ट सी व्हाट इज न्यूटन स्कूल. So basically, as we all know that Newton School is an e-learning platform which have different programs for you. First is pay after placement program, under which they will train you and make you a full stack developer, and after that they will also get you placed in different companies which they have tie up with. Okay, and their recent batch for full stack development course is going to start in September batch, so you can apply now. If you want to, just go to newtonschool.co and apply now. And second thing is they have a pay after placement program, so you don't need to pay even a single penny until and unless you get placed in these companies. Okay, for minimum 5 lakh CTC. Second program they have for you is Launchpad initiative, under which they are providing you different courses for free, and on completion of those courses you will also get certificate for that. Okay, third thing they have for you is master's degree program. So if you want to do your master's degree from abroad by sitting at your home, you can just check Newton School master's degree program, in which you will be doing your master's degree from MIA Digital University of Spain. Okay, so if you want to know more about this program, you can just comment in the comment box, or also you can go to the link in description, that is bit.ly Hitesh15 for more information about this. Okay, at the end, if you haven't subscribed this YouTube channel, that is Code Kitchen Newton School, just go and subscribe this YouTube, as we are regularly updating these playlists so that you can learn more and more for free. Okay, just go and subscribe this YouTube channel and bookmark this playlist. Like right now we are learning dynamic programming. Okay, fine. So now let's just start today's video, and in today's video we are going to learn print shortest common super sequence. ओके तो मैंने प्रीवियस वीडियो में तुम लोगों को बताया था दैट कैसे हम कोई भी दो गिवन सीक्वेंस है हमारे पास और हम कैसे उसका क्या निकाल सकते हैं, शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस. मैंने ये भी बताया था सुपर सीक्वेंस होता क्या है और उसमें ये निकालने में LCS का रोल क्या होता है. तो मैं एक बार ब्रीफ में अगेन बताता हूँ LCS का रोल क्या होता है. सपोज यू आर गिवन 2 सीक्वेंसेस. ओके, तुम्हारे पास 2 सीक्वेंसेस हैं. फर्स्ट लिस्ट जैसे ABCD, सेकेंड इज BDEF. ठीक है, तो अगर तुम इसमें शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस लिखना चाहते हो तो मैंने कैसे बताया था, तुम सिंपली क्या लिख सकते हो, M+N की जो है सुपर सीक्वेंस जिसमें दोनों के दोनों सीक्वेंस प्रेजेंट हो, उसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है, M+N. ओके, बट इस M+N में हमें करना क्या है, हमें शॉर्टेस्ट बनाना है. तो हम करते क्या थे, इस M+N में एक्चुअली में जो हमारा लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस है LCS, वो 2 बार प्रेजेंट था. ठीक है, एक बार इस फर्स्ट स्ट्रिंग में प्रेजेंट होगा, लेट्स जस्ट से फर्स्ट स्ट्रिंग एज X, एंड एक बार Y स्ट्रिंग में प्रेजेंट होगा. तो हम बेसिकली करते क्या थे, हम एक बार LCS को हटा देते थे इससे, है ना, और खाली एक LCS को रखते थे. तो अल्टीमेटली आई एम सेइंग कि शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस की जो लेंथ बनती थी वो कितनी बनती थी, M+N माइनस लेंथ ऑफ LCS. ओके,
ये मेरा शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस था। अब मुझे यही शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस प्रिंट करना है। प्रिंट इन द सेंस मुझे शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस अब बताना है कि ये शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस इतनी लेंथ का है। फाइन, अब ये मैं कैसे करने वाला हूँ मुझे ये देखना पड़ेगा। तो अगर मैंने प्रिंटिंग LCS वीडियोस ऑलरेडी देख रखे हैं तो मुझे ये बहुत इजी लगने वाला है। कैसे? क्योंकि हमें पूरा का पूरा उसी का कोड फॉलो करना है, और वो कैसे वो भी अभी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली हम प्रिंटिंग LCS में क्या करते थे, हम एक बार LCS प्रिंट करते थे, है ना। हम एग्जैक्टली मान लो अगर हमें ये दोनों स्ट्रिंग गिवन है और हम LCS में क्या करते थे, एक DP मैट्रिक्स बनाते थे, सॉरी, यहाँ पे हम लिखते थे अपनी फर्स्ट स्ट्रिंग ABCD, यहाँ पे लिखते थे सेकेंड स्ट्रिंग BDEF, और लास्ट में हम जो भी LCS की लेंथ थी हमें वो मिलती थी सपोज X। फिर हम क्या करते थे, हम बैक ट्रैकिंग करते थे, और बैक ट्रैकिंग के थ्रू हम अपनी LCS निकालते थे। ठीक है, और वो बैक ट्रैकिंग की भी दो कंडीशन होती थी। सपोज हम यहाँ पे हैं, यहाँ पे हमारी LCS की लेंथ है, हम सिंपली ये कैरेक्टर और ये कैरेक्टर कंपेयर करते थे। कंपेयर करने में अगर ये दोनों अनइक्वल हैं तो हम सिंपली चेक करते थे कि हम इस पोजीशन में कहाँ से आए हैं, दैट इज हम यहाँ से आए हैं या फिर यहाँ से आए हैं। ये कैसे पता चलता था, अगर ये चीज़ मैक्सिमम है, बिकॉज वी वर सर्चिंग फॉर लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस, है ना। तो हम ऑब्वियसली जहाँ से हमें ज़्यादा वैल्यू मिल रही होगी वहाँ से आए होंगे। तो अगर ये चीज़ इक्वल थी तो हम यहाँ से यहाँ की तरफ बैक ट्रैक करते थे, और अगर ये ज़्यादा होता है तो यहाँ की तरफ। ठीक है, और इन केस अगर ये दोनों कैरेक्टर्स इक्वल होते थे तो हम कहाँ की तरफ बैक ट्रैक कर जाते थे, सिंपली डायगोनली, है ना। इतनी चीज़ें हमें LCS में लर्न है। और अगेन कभी भी हमें इक्वल कैरेक्टर मिलता था जब भी, सपोज जैसे ये वाला केस है, जैसे हम यहाँ पे हैं, सपोज हम ये वाला कैरेक्टर चेक कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे D और D इक्वल है, तो हमें जैसे ही इक्वल मिलता था हम क्या करते थे, D को अपने LCS में ऐड कर देते थे, और यू कैन से D को तुमने प्रिंट कर दिया, ओके, और फिर तुम सिंपली इस एलिमेंट में आ जाते थे डायगोनली बैक ट्रैकिंग। ठीक है, फाइन। तो अगेन जब हम सुपर सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, सुपर सीक्वेंस की बात करते हैं टाइम भी एग्जैक्टली हमें करना क्या है, हमें LCS तो प्रिंट करना ही करना है ना। एग्जैक्टली हम करते क्या है, हम कुछ वो वाले कैरेक्टर्स प्रिंट करेंगे जो X में है बट नॉट इन Y। ठीक है, प्लस हम LCS प्रिंट करेंगे, प्लस हम वो वाले कैरेक्टर्स प्रिंट करेंगे जो X में नहीं है बट Y में है। ठीक है, तो मेन एम हमारा क्या है, हमें वो वाले कैरेक्टर्स प्रिंट तो करने ही करने हैं जो LCS में है। ओके, फाइन। तो जो भी कैरेक्टर्स LCS में हैं वो वाले कैरेक्टर्स हम सिंपली प्रिंट करेंगे। तो यू कैन से ये जो हमारा प्रिंटिंग LCS वाला फॉर्म होता था ये तो हमें करना ही करना है। ठीक है, एक्स्ट्रा हमें क्या करना है, सिंपली एक्स्ट्रा हमें ये दोनों केस और इंक्लूड करने हैं। जो कैरेक्टर्स X में है बट Y में नहीं है वो वाले प्रिंट करने हैं, और जो कैरेक्टर्स Y में हैं बट X में नहीं है वो वाले कैरेक्टर्स। तो ये वाला केस एग्जैक्टली होता क्या था हमारा, ये वाला वो वाले केस होते थे जब हम यहाँ पे कहीं पे भी होते थे। ठीक है, सपोज हम I और J में हैं, I और J शेल में, हम सिंपली क्या करते थे, हम X ऑफ I माइनस 1 कंपेयर करते थे किसके साथ, Y ऑफ J माइनस 1 के साथ। जब ये दोनों कैरेक्टर्स इक्वल होते थे ये वाला केस किसका हो जाता था, सिंपली LCS का। और इस केस में हमें सिंपली क्या करना पड़ता था, ये कैरेक्टर LCS में ऐड करना पड़ता था। ठीक है, सेकंड केस क्या बनता था हमारा, जब X ऑफ I माइनस 1 डज नॉट इज इक्वल्स टू Y ऑफ J माइनस 1 होता था। ओके, इन दैट केस हम सिंपली क्या सर्च करते थे, DP ऑफ I माइनस 1 एंड J अगर ग्रेटर देन है DP ऑफ I एंड J माइनस 1, तो हम सिंपली क्या करते थे, I में माइनस माइनस कर देते थे। वाई, क्योंकि हम अब सिंपली क्या करेंगे, सपोज अगर ये कैरेक्टर जो है, ये शेल जो है IJ है और DP ऑफ I माइनस 1J बड़ा है,
तो हम सिंपली कहाँ पे जाते थे, बैक ट्रैक के बाद यहाँ पे i-1 और j में, ठीक है। और ड्यूरिंग यहाँ पे जाने के टाइम हम सिंपली करते क्या थे, i में माइनस माइनस बस करते थे, ओके। बट राइट नाउ हम कर क्या रहे हैं, हमें सुपर सीक्वेंस पूरा का पूरा वो भी चाहिए, वो भी मतलब जो कैरेक्टर्स x में है बट y में नहीं है, और ये वाले कैरेक्टर्स भी। तो सिंपली इसके साथ साथ हमें एग्जैक्टली और क्या करना है, हमें ये कैरेक्टर अपने सुपर सीक्वेंस में ऐड भी करना है ना। हम इस कैरेक्टर को सिंपली स्किप नहीं कर सकते क्योंकि ये कैरेक्टर इक्वल है या नहीं, बट हमारे सुपर सीक्वेंस में तो आएगा ही ना। फाइन, अगर इक्वल है तो सिंपली एक बार आएगा, एंड दैट्स वाई हम क्या करेंगे, सिंपली उसे ऐड कर देंगे अपने सुपर सीक्वेंस में। और इन केस इक्वल नहीं है, ये वाले केसेस है, ठीक है, या फिर dp ऑफ i-1j बड़ा है या फिर ऐसा है, इस केस में हमें ये कैरेक्टर भी अपने सुपर सीक्वेंस में ऐड करना पड़ेगा। और वो हम कैसे ऐड करेंगे, सपोज हम dp ऑफ i-1j, मैंने क्या बोला कि dp ऑफ i-1j राइट नाउ बड़ा है dp ऑफ i-1 से, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, मुझे पता चल गया कि मुझे करना क्या है, i में माइनस माइनस करना है, और सिंपली मुझे क्या करना है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं सिंपली ये वाली स्ट्रिंग में जा रहा हूँ, ठीक है। i करेस्पॉन्डिंग किसके है, i मेरा x के करेस्पॉन्डिंग है। ये चीज आई गेस तुम लोगों को समझ में आ रही होगी। जो मेरी रोज है मैंने उसमें कौन सी स्ट्रिंग डिफाइन की है, i मेरा किसको करेस्पॉन्ड कर रहा है, रोज को। i सिंपली करेस्पॉन्डिंग टू रोज एंड j इज करेस्पॉन्डिंग टू कॉलम्स, ठीक है। और रोज में मैंने कौन सी स्ट्रिंग डिफाइन की है, x, ठीक है। तो अगर मेरा i-1j से मैं आया था तो मैं सिंपली क्या करूंगा, अपने उसी स्ट्रिंग के कैरेक्टर को सुपर सीक्वेंस में ऐड कर दूंगा, ठीक है। और अगर सेम चीज ये ऐसी होती, दैट इज अगर ये ऐसा होता तो मैं किसको ऐड कर देता, y ऑफ j-1, सिंपल सी चीज है, ठीक है। अब मैं अगर इसका तुम्हें पूरा कोड दिखाऊंगा तो तुम्हें बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तुम्हारा पूरा का पूरा प्रोसेस सेम रहेगा, जो कि तुम्हें पहले LCS का कोड लिखना है। LCS का कोड लिखने के बाद LCS को जैसे हम प्रिंट करते थे वो तुम्हें पूरा कोड लिखना है, ठीक है। बस उस कोड में माइनर से चेंजेस हैं, जहां पे भी तुम्हारा ये वाला केस बनता था dp ऑफ i-1j इज ग्रेटर देन dp ऑफ i-j-1, तो मैं वहां पे बस एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड करनी है कि तुम अपने s में क्या कर दोगे, x ऑफ i-1 भी पुश कर दोगे। दैट इज ये वाला कैरेक्टर तुम वेस्ट नहीं डाल सकते, तुम्हें ये वाला कैरेक्टर भी अपने सुपर सीक्वेंस में चाहिए, एंड तुम्हें एंड में सुपर सीक्वेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो नाउ आई एम शोइंग यू द कोड, ओके। और सपोज ये मेरी दो स्ट्रिंग थी s1 एंड s2, ठीक है, फाइन। अब मैंने सिंपली क्या किया, यहाँ तक तुम अगर सिंपली देखोगे तो ये मैंने dp एरे बना ली जिसमें मैं इनिशियली dp स्टोर करने वाला हूँ। ये मेरा फर्स्टली बेस केस हो गया, ठीक है। ये मेरा यहाँ पे बेस केस i इज इक्वल टू 0 या j इज इक्वल टू 0 में। फिर ये मैंने dp एरे अपडेट की, दैट इज अगर करंट एक कैरेक्टर इक्वल है तो मैं सिंपली क्या कर दूंगा, डायगोनल के थ्रू +1 कर दूंगा, और अगर नहीं है तो मुझे क्या लेना है, i-1j और i-j-1 का मैक्सिमम, ठीक है, फाइन। अब अगर तुम लोगों को ये वाला प्रोसेस याद है प्रिंटिंग LCS का, तो तुम लोगों के लिए और इजी चीज हो जाती है, ठीक है। मैंने सिंपली कहां से, अगर ये मेरी dp एरे है, अगर ये मेरी dp एरे है तो मैंने यहां से स्टार्ट किया, मैंने i इज इक्वल्स टू m ले लिया और j इज इक्वल्स टू n ले लिया, ठीक है। और ये स्ट्रिंग, इसमें मैं अपना सुपर सीक्वेंस स्टोर करूंगा, ठीक है। इनिशियली ये स्ट्रिंग एम्प्टी है, फिर मैंने एक लूप लगा दिया i इज ग्रेटर देन 0 एंड j इज ग्रेटर देन 0, फाइन, ओके। अब सिंपली एक चीज देखो, अब मुझे सिंपली करना क्या है, प्रिंटिंग LCS वाला चीज ही लिखना है। मैंने देखा जब भी करंट कैरेक्टर इक्वल है मैंने उस कैरेक्टर को अपने सुपर सीक्वेंस में ऐड कर दिया, और बैक ट्रैक मैंने कहाँ कर दिया, सिंपली डायगोनल एलिमेंट में i-, j-। एल्स अगर करंट कैरेक्टर इक्वल नहीं है तो मैं जहां से भी आया था वो वाला कैरेक्टर ऐड कर दूंगा, ठीक है। i-1j अगर बड़ा है तो मैं सिंपली फर्स्ट स्ट्रिंग दैट इज जो रो के करेस्पॉन्डिंग थी उसको अपने सुपर सीक्वेंस में ऐड कर दूंगा, अदरवाइज कॉलम के करेस्पॉन्डिंग जो स्ट्रिंग थी उसको, फाइन। यहां तक मेरा सब ठीक था।
अब एक चीज देखो, जब मेरा ये वाला लूप खत्म हो जाएगा तो हुआ क्या, इधर मेरी स्ट्रिंग 1 खत्म हो गई, इधर मेरी स्ट्रिंग 2 खत्म हो गई, ठीक है। तो अगर मैं LCS की बात करूं, सपोज ABCD और BDEF ये दोनों तुम्हारी स्ट्रिंग थी। LCS में होता क्या था एग्जैक्टली, जब भी तुम्हारी कोई एक स्ट्रिंग खत्म हो जाती थी, दैट इज अगर I 0 हो गया लेट से, ठीक है, तो होता क्या था, तुम्हारी अब उसके आगे तुम्हें चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर तुम्हारी एक स्ट्रिंग एम्प्टी हो गई है तो दूसरी स्ट्रिंग के साथ कोई भी कॉमन कैरेक्टर नहीं मिल सकता, तो उसके आगे चेक करने की जरूरत नहीं थी। बट सुपर सीक्वेंस में तुम्हें करना क्या है, जो बची हुई सेकेंड स्ट्रिंग है वो भी तुम्हें ऐड करनी पड़ेगी अपने मेन सुपर सीक्वेंस में। आई होप ये चीज़ समझ में आ रही है, ठीक है, फाइन। तो मैं फिर से ब्रीफ में बताता हूँ। LCS में होता क्या था, जब तुम्हारी एक स्ट्रिंग एम्प्टी हो गई, सपोज ये स्ट्रिंग तुम्हारी X है और ये Y है, X स्ट्रिंग एम्प्टी हो गई, अब तुम्हें फर्दर चेक करने की जरूरत नहीं है। बट सुपर सीक्वेंस में जो तुम्हारी फर्दर बची हुई स्ट्रिंग है ना, जो बची हुई स्ट्रिंग है, ये भी कैरेक्टर्स तुम्हारे सुपर सीक्वेंस में ऐड होने वाले, एंड फॉर दैट वी विल राइट 2 एक्स्ट्रा लूप्स हेयर। अगर फर्स्ट स्ट्रिंग बची है तो मैं वो सारे कैरेक्टर्स फर्स्ट स्ट्रिंग के अपने सुपर सीक्वेंस में ऐड कर दूंगा, और अगर सेकेंड स्ट्रिंग बची है तो वो सारे कैरेक्टर्स सेकेंड स्ट्रिंग के सुपर सीक्वेंस में ऐड कर दूंगा, और एट द एंड मुझे सिंपली रिवर्स कर देना है अपना मेन सुपर सीक्वेंस, क्योंकि मैं बैक ट्रैक कर रहा था। मैं ये चीज़ बहुत बार बता चुका हूँ, मैं बैक ट्रैक करते हुए जा रहा था ना, तो मुझे जो सुपर सीक्वेंस मिला होगा वो रिवर्स पोजीशन में मिला होगा, तो एग्जैक्ट सुपर सीक्वेंस के लिए मुझे जो फाइनल है उसको रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है, और एट द एंड यू कैन जस्ट प्रिंट सुपर सीक्वेंस, फाइन। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। If you still have any doubt, you can just ask me in comment section and I will explain you in brief again. Again, if you haven't subscribed this YouTube channel, just go and subscribe this Code Kitchen Newton School so that you can learn DP, all the standard problems in DP as soon as possible. Okay, and just go to newtonschool.co and check their pay after placement program, launchpad initiative and master's degree program. Thank you guys for watching.